कि मुझे 5 दिन और रुकना पड़ेगा अभी यहाँ पे। सो आई टोल्ड माई फादर कि वाई, मैंने कहा वो क्लियर हो गया है एंड नाउ फॉर द मेडिकल्स। कि अच्छा वो जो 5 बार से क्लियर नहीं हो रहा था, इट क्लियर्ड दिस टाइम। So speaking honestly, I couldn't listen the digit number when it was being called out. And first call I made to the Vipul, and he said very Delhi specific phrase, very first before Christ. And नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं SSB साइक की वीडियो सीरीज़ के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का एक्सपीरियंस जो कि अभी रिसेंटली रिकमेंड हुए हैं 14th SSB बोर्ड इलाहाबाद से। हरीम, आपका स्वागत करता हूं SSB साइक के चैनल के ऊपर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है एज एन ऑफिसर। थैंक यू सो मच विपुल। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरी अपने 6th अटैम्प्ट के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। हरी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपका चेस्ट नंबर बुलाया गया तो आपको कैसा लगा? Actually, speaking honestly, I couldn't listen the digit number when it was being called out. हुआ यूँ कि when commandant sir of 14th SSB, he came in with a paper in his hand. Okay. And there was he was about to announce the chest number. So my senses were working properly, but somehow I could not listen the digit. So Okay. I was a little bit in dilemma, and I thought that it was somebody else's number. Okay. So मैं थोड़ी देर बैठा रहा and out of curiosity I looked around कि किसका बुलाया गया है. So when I didn't see anybody standing up, so just for the initiative quality, so I stood up. And Okay. luckily it was my number. He called chest number 3. So everybody around me was looking at me that why this person is still sitting and not standing up. जबकि आपका चेस्ट नंबर बुलाया गया हुआ है। Yeah, and I think you could relate with it. Yeah, exactly. Yeah, you have narrated that incident. So similar happened with me, and it happens often that at that point of time you were so much thought process going on in your mind. जब आपका चेस्ट नंबर बुलाया गया Okay. तो आपने सबसे पहले फ़ोन किसको किया? आपने किसको बताया अपने सिलेक्शन के बारे में? I think if I'm not wrong, I think विपुल मैंने आपको ही कॉल किया था सबसे पहले। And it was कि इलाहाबाद में जो लोग गए होंगे वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपका चेस्ट नंबर बुलाया जाता है, सो यू आर सेक्लूडेड फ्रॉम द होल ग्रुप, you are escorted towards a different room, and then you are giving hell lot of papers to fill in your details. Exactly. And then deputy commandant sir called us upon in his room, and he told us some things to maintain the discipline for the further days, and he congratulated us as well. Then I came back to the lines. Okay. And in lines we were looking around for the network, and first call I made to the Vipul, and he said very Delhi specific phrase, very first before Christ. And this was the way it happened. ओके, तो आपने मेरे बाद अपने जब पेरेंट्स को बताया था तो आपके मम्मी, आपके पापा, उनका क्या रिस्पॉन्स था? उनको कैसा लगा? Okay. So actually I maintained that it didn't break out like something big. My first language was such कि मुझे 5 दिन और रुकना पड़ेगा अभी यहाँ पे. So I told my father कि why, मैंने कहा वो क्लियर हो गया है and now for the medicals. कि अच्छा वो जो 5 बार से क्लियर नहीं हो रहा था, it cleared this time. Okay. So this was his reaction, and my father congratulated me, and then other family members as well. Okay. So this was the response. Then other calls kept coming in, all other people, the phone kept ringing on. So the whole day spent in answering the calls only. Okay. हरी, आप कुछ व्यूअर्स को कुछ एग्जांपल दीजिए कि कौन-कौन सी वो स्ट्रेटजीज होती है, क्या-क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? Of course. Stage 1 की बात करें, first stage is OIR. Okay. So you have to practice OIR at home. And because इस बार बुकलेट्स बिल्कुल नहीं थी,
Okay. और उसमें क्यूब्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे. अच्छा. Around if I am attempting 90 questions, out of which 40-45 questions are of cube. So that Okay. is completely based upon your imagination. Okay. And अगर आप SSC या CDS या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसमें वो चीज़ कवर होती नहीं. Okay. So that is totally प्रैक्टिस बेस्ड. एंड इवन ऐसा भी होता है कि आप पेपर करते करते उस कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं, बट तब तक बहुत देर हो जाती है. आप एक पेपर कर चुके हैं. Okay. तो OIR अगर आपका अच्छा जाएगा, सो एक तरफ से दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, वेरी क्रूशियल वन ऑल्सो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट. तो एक मेंटल से प्रेशर रिलीज हो जाता है. ठीक है, OIR अच्छा गया. सेकेंड इज़ ऑफ कोर्स PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट. सो माई स्ट्रेटेजी वॉज कि अक्सर ऐसा होता है कि द मोमेंट यू सॉ द पिक्चर यू स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी. Okay. Don't do this. If they are giving you 30 seconds, first of all, listen to the instructions properly. Okay. If they are giving you 30 seconds, then those 30 seconds are to perceive the picture. Okay. Because it is completely based upon your perception. Exactly. And by the time you start writing, Yeah. you put your pen down on the paper. You have to have that impression of that picture in your mind. अच्छा. That will help you to write the story without any correction. Okay. एंड आई थिंक अगर आप पेपर पे जो स्टोरी लिख रहे हो, हाँ. वो कितनी नीट एंड क्लीन है, Okay. दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स. बिकॉज इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं और सबकी स्टोरीज वो अगर चेक करने जाएंगे, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और उनको एक ही दिन में रिजल्ट देना होता है. Okay. तो आई थिंक दिस इज़ बेटर कि आप बिना किसी करेक्शन के आप कैरेक्टर्स को मेंशन करें. Okay. और मूड उनका जो भी है वो मेंशन करें, एंड उनकी एज वगैरह मेंशन करें. उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसको कैसे पोर्ट्रे करना है, हाँ. वो इंस्ट्रक्शन भी आपको दिया गया होगा. Okay. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. एक्शन आपको लिखना है, और उसके बाद अगर आपकी स्टोरी ख़त्म भी नहीं होती है, Okay. यू आर आस्क्ड टू राइट 100 वर्ड स्टोरी. सो डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ कि मेरी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है. ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है. दैट इज़ टोटली फाइन. बट उसके बाद आपको करना क्या है ना कि then some discussions broke out as the paper is taken from you and you are waiting for the discussion. Okay. The discussion upon the story. Okay. But उससे पहले लोगों का आपस में discussion चालू हो जाता है. Exactly. And that is one of the things that distract you a lot. So that is the time for you to prepare your story, the story you have written. You have to improve that in your mind. You have to repeat it again and again. So in the discussion part, when you are discussing your story, Okay. first of all when you are narrating your story, तो अगर आपने उसको बार बार रिवाइज़ किया है तो एक अपर एंड आपको मिलता है कि आप बहुत इजीली अपनी स्टोरी को बिना किसी प्रेशर में आए पूरे के पूरे ग्रुप को नरेट कर पाओगे. Exactly. So just utilize that time right after the paper is taken from you, and don't indulge into any unnecessary discussion with the fellow people out there. ये चीज़ एक्चुअली व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ मैक्सिमम लोग करते हैं. लोग टीम बनाते हैं जस्ट आफ्टर अपनी स्टोरी लिखने के बाद. मेरे हिसाब से आपको टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सिर्फ अपनी अगर स्टोरी रिवाइज़ करें 10 बार 50 बार, जितनी बार रिवाइज़ करना उतनी बार रिवाइज़ करें, तो ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. Of course. क्योंकि जब हम पहले ही GD करते हो तो हम एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार दूसरा वाला मेरी हेल्प करे. गाइस, अगर पहले से आपकी अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी तो आप ऑलरेडी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो. मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरा PPDT का जो प्रोसेस है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले हमारा OIR टेस्ट होता है, जिसके अंदर हमारे वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट होता है. फिर आपका PPDT में सबसे पहले आपको एक स्टोरी लिखनी होती है. आपको एक फ़ोटो दिखाई जाएगी, वो हेज़ी हो सकती है, क्लियर हो सकती है, राइट. इसका कोई कुछ ट्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 14 बोर्ड या 34 बोर्ड या कोई भी SSB के बोर्ड में कि हमेशा हेज़ी होगा या क्लियर होगा. आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कुछ भी हो सकता है. जैसा हरी ने बताया कि जो 30 सेकेंड्स है, आप डेफिनेटली उस फ़ोटो को देखिए कितने कैरेक्टर्स हैं, आपको पता करना चाहिए कि क्योंकि वही चीज़ आप डिस्कस करोगे अपने GD के अंदर. बिल्कुल. या एंड जब आप अपना नरेशन ख़त्म कर चुके हैं, सो फिर आपको ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की स्टोरीज़ को नहीं सुन रहे हैं. ओके. यू हैव टू लिसन अदर पीपल्स स्टोरी एज वेल, बिकॉज उसके बाद जो होने वाला है उसमें लिसनिंग पार्ट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एग्जैक्टली. And the moment the discussion broke out, it definitely will become like parliament or a fish market. So what happens, if you have been listening to the people very keenly, then you will throw the numbers, the facts, and that will be unbeatable. How? The moment the discussion break out, your first line will be out of these many peoples,
4 people narrated the story which is based upon this common theme. Exactly. So I think this should be our base theme, and we can add our own elements to it and make a wholesome story. So in both the times, this was my strategy. Okay. In the discussion, I just found out of 14, एक या 2 लोग तो आपकी तरफ देख रहे होंगे. Definitely वो देखेंगे. And just pick them up and make them interested in whatever you are saying. And this is how you make your space. And आप एक बार बोल चुके हो, then do not get into it. Just take a step back. Okay. And उसके बाद आप थोड़ी देर चुप रहिए, फिर आप लोगों को सुनिए कि कहाँ जा रही है स्टोरी. और आपकी अप्रोच पूरे टाइम ये होनी चाहिए कि आप एक कॉमन स्टोरी जल्दी से जल्दी निकाल के लाएं. क्योंकि कई ग्रुप्स में ऐसा होता है कि वो एक कंसेंसस पे पहुँच ही नहीं पाते हैं. अच्छा, व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, आफ्टर डिस्कशन आपको अपनी स्टोरी कंक्लूड करनी होती है, एंड उसके अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा अपने आप को नॉमिनेट कीजिए. अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, आपने बहुत अच्छा नरेशन किया है, आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट बोले हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को नॉमिनेट कीजिए, हाथ रेस कीजिए और ये बताइए कि आपने इतने सारे पॉइंट आपने कलेक्ट किए हैं, आपने सारी स्टोरी सुनी है, आपने सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, इसलिए आपको नॉमिनेट करना चाहिए और आप एक अच्छी स्टोरी नरेट करेंगे. हरी, अब हम चलते हैं साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड GTO सेक्शन के ऊपर. बिल्कुल. तो आप ये बताइए कि साइकोलॉजी के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप रिकमेंड हुए? ओके, सो साइकोमेट्री के लिए पहले मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके गया नहीं था. दिस टाइम प्रैक्टिस वॉज वेरी मच. आई गेस आई प्रिपेयर्ड अराउंड 50 स्टोरीज एट होम and I did not repeat any story. Okay. तो इंस्टेंट जो स्टोरी माइंड में आई, सो उसमें जैसा कि हमने जब सेशंस किए थे SSB साइक पे, सो वी डिसाइडेड दैट द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट स्टोरी, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, शुड बी लाइक जो पहली लाइन होगी, that would be the 5 details about the person. What is the name of the person, what is the age, and where he's residing at, and what is he is up to, what is his profession, and what organization he's working into, he or she. So इसमें एक फैक्टर ये होता है कि आपको जो एज होती है, बिकॉज आपके एज वहाँ पर मेंशन करनी होती है, आपका चेस्ट नंबर, एज एंड योर नेम. सो आई थिंक एज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाट यू आर टेकर ऑफ योर कैरेक्टर्स इन योर स्टोरीज. सो दैट शुड बी प्लस और -4 I have taken. And then what succeeds, this 5 details is the problem statement. The second statement is problem statement in TED stories. And next would come are the actions, just to solve the problem you have created. And अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मैं बिकॉज टैट में कंपेरेटिवली बहुत क्लियर पिक्चर्स होती हैं. एग्जैक्टली. एंड अगर आपको कैरेक्टर्स इस मूड में नहीं दिख रहे हैं कि दे आर नॉट इन सम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, then I will not put any problem into the picture. लेकिन अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ परसेप्शन आता है in TED stories by looking at the picture, then I'll definitely put some problem and try to solve it. Definitely solve it through the actions, course of action. And next would be a conclusion part. That would be the last sentence of the story. अब ये सारा का सारा आपको 4 मिनट के अंदर करना है. एंड फर्स्ट 30 सेकेंड आई कम्प्लीटली गिव जस्ट टू लुक एट द पिक्चर, क्योंकि तभी आप अपनी स्टोरी बना पाएंगे. एंड यू नो while looking at the picture you created a story in your mind. And next you have to do is to write it down on the paper. तो आपको उसमें थोड़ा सा आप एडिटिंग से बच सकते हैं, करेक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपने माइंड में हमने प्लान बन रहा होता है while looking at the picture कि what points I'm going to write. Exactly. And next इसी तरीके से सारी पिक्चर्स बन जाएगी. लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि आप 4 मिनट में पिक्चर कंप्लीट नहीं कर पाए स्टोरी, एंड नेक्स्ट पिक्चर पॉप अप ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट पिक्चर पॉप्स अप ऑन द स्क्रीन, देन व्हाट यू विल डू, बिकॉज वो 30 सेकेंड के बाद वो पिक्चर डिसअपियर होने वाली है, एंड आपकी पिछली वाली स्टोरी अभी कंप्लीट हुई नहीं है. सो आई पोज राइटिंग दिस स्टोरी. आई लुक एट द पिक्चर विच इज ऑन द स्क्रीन एंड मेक अ स्टोरी. दैट पिक्चर क्या थी उसको कम से कम मैं परसीव कर लूँगा. एग्जैक्टली. अगर आप पिक्चर ही नहीं देख पाओगे तो स्टोरी नहीं देख पाओगे. एंड नेक्स्ट वुड बी जो पिछली वाली जो स्टोरी है, आई जस्ट क्विकली फिनिश इट अप क्विकली, क्योंकि अब उसका हो चुका है टाइम. सो जस्ट आई राइट द कंक्लूजन सेंटेंस एंड आई स्टार्ट राइटिंग द नेक्स्ट स्टोरी, एंड उसमें थोड़ा सा आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा होगी. बिकॉज द सेम प्रॉब्लम विल अपीयर अप इन द
next story. Exactly, at the end of the story. At the end of the story. So this is a part of correction जो आप थोड़ा सा कर सकते हैं. कई बार होता है कि नहीं होती 4 मिनट में स्टोरी कंप्लीट. Next would be the VAT, word association test. So there were just 2 strategies. I would narrate the second strategy very first, which was the cheat sheet. Okay. And I would put it on the second priority because and that will be the survival. बिकॉज कई बार ऐसा वर्ड आ जाता है जो स्ट्राइक नहीं करता माइंड में, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी सेंटेंस और यू एंड अप मेकिंग अ नेगेटिव और अ प्रीचिंग सेंटेंस सॉर्ट ऑफ सेंटेंस. तो फिर आप चीट शीट को रिजॉर्ट करोगे. अदरवाइज द वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट केम इन योर माइंड थोड़ा सा उसमें करेक्शन करके यू विल मेक अ पॉजिटिव वन एंड शॉर्ट वन. अगर नहीं आ रहा है देन यू विल गो टू द चीट शीट विच इज डेफिनेटली यू विल कम अप विद समथिंग. तो हरी जो आप ये चीट शीट कह रहे हैं, आप व्यूअर्स को बताएंगे कि एग्जैक्टली चीट शीट में क्या है, उसका मतलब क्या है? थोड़ा सा साउंड करता है वेदर यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग. एग्जैक्टली, लोग सोचे हैं कि आपके पास क्या है. दिस इज नॉट द वे. एक्चुअली चीट शीट इज गिवन अ क्विर्की नेम, बट इट्स एग्जैक्टली द पोर्ट्रेयल ऑफ 3 कॉलम्स. 3 कॉलम है जिसमें आप अपनी क्वालिटीज़ and activities you have participated in and profession that you adore so much. जो आप बनना चाहते थे, जो आप हो या जो आप रह चुके हो. So जैसे कि आपकी नॉलेज है जैसे आई बीन इनटू इंजीनियरिंग, सो इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, IT और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, और आई वाज इंटरेस्टेड इन न्यूज़, जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग, कॉपी राइटिंग. सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोफेशन. और अगर मैं एस्पायर करता हूँ सिविल सर्विसेज, सो ये सब मेरे प्रोफेशन वाले में आ जाएंगे. क्वालिटीज़, ऑल द एडजेक्टिव्स यू हैव एडेड इन योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. सो वहाँ पर जितने भी आपने अपने बारे में लिखा है वो सारी क्वालिटीज़ सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में आप अपनी एक्टिविटीज़, लाइक जो सारी चीज़ें आप अपने PIQ में मेंशन कर चुके हैं. एग्जैक्टली. गाइस, आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी चीट शीट होती है, बेसिकली चीट शीट सिर्फ आपके लिए है. अगर आपके 2 महीने हैं तैयारी करने के लिए, तो आप वो चीट शीट के अंदर आप लिखेंगे कि आज तक आपने कितनी एक्टिविटीज़ की है. फॉर एग्जांपल, मैंने स्काई डाइविंग की है, मैंने रिवर राफ्टिंग की है, मैंने स्कूबा डाइविंग की है. तो मैं अगर ये सब एक्टिविटीज़ अगर अपने वैट के सेंटेंसेस में डालूंगा तो ये आपके फेवर में जाएगा. गाइस, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं चीट शीट के कंसेप्ट से आया क्यों. गाइस, आप लोगों को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि जो वैट टेस्ट होता है हमारा, ये अनकॉन्शियस टेस्ट है. बिल्कुल राइट. एंड बहुत बार ऐसी चीज़ होती है कि जो एक्टिविटीज़ हमने शायद 4 साल पहले की है या 2 साल पहले की है, हमारे माइंड में होता भी नहीं है. राइट. बट अगर हम उसको अपने माइंड में लेके आए, राइट, कि हमने ये सब एक्टिविटीज़ की हुई है, तो गाइज आप वही एक्टिविटीज़ अपने सेंटेंसेस में डालोगे तो साइकोलॉजिस्ट ये सोचेगा कि एग्जैक्टली सेम एक्टिविटीज़ आपने PIQ में मेंशन की है, यही एक्टिविटीज़ आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बोलने वाले हो, यही एक्टिविटीज़ आपने अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है. तो मतलब कि आप एक सच बोल रहे हैं. बिल्कुल. कहने को सिर्फ चीट शीट है, बट ये आपका एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है जो हम पहले प्रिपेयर करते हैं एक तरीके से. ओके. एंड दिस इज़ वेरी गुड डेफिनेशन. एंड इट इज़ बीइंग सेड कि जो 3 टेस्ट होते हैं साइकोमेट्री के, स्पेसिफिकली अगर साइकोमेट्री टेस्ट के बारे में बोला जाए, सो आपका टैट इज़ द डिफाइनिंग टेस्ट, मेन टेस्ट. एंड बाकी की जो टेस्ट्स हैं जैसे वैट है, एंड आई विल बी कमिंग टू SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. ओके. सो दीज आर द टेस्ट जिसको टैट से उनको जो पर्सनैलिटी हमारी निकल के आती है उससे वो बाकी टेस्ट से मैच करवाते हैं. तो एज विपुल सेड कि आपने अपनी रियल लाइफ में जो एक्टिविटीज़ की है, जो कि आप अपने पर्सनल PIQ में लिखने वाले हो, और जो आप अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखने वाले हो, वही सारी चीज़ें अगर आप अपने बाकी टेस्ट में पोर्ट्रे कर रहे हो, सो डेफिनेटली इफ़ ऑल द असेसर्स आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, देन वो आपके फेवर में जाएगा. ऑनेस्टी वाला एक एलिमेंट उसमें रहेगा, एक्चुअलिटी वाला, रियलिटी वाला. सो यू आर नॉट मेकिंग अप योर इमेज समथिंग विच यू आर नॉट, बट यू आर पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ एज अ रियल वन. एग्जैक्टली गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो SSB साइक की जो स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजीज मैं सबको पढ़ाता हूँ गाइज, उसके अंदर हम कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, कुछ भी हम झूठ नहीं बोलेंगे. हम बस वो सारी चीज़ें लेके आएंगे जो आपने लाइफ में करके रखा है. एंड गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग अपने आप पे प्रेशर इसलिए ले लेते हैं बिकॉज वो कुछ और पोर्ट्रे करना चाहते हैं. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो एक्टिविटीज़ की हैं,
आप अगर कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया हुआ, प्लीज़ एक्सेप्ट करो, Accept that. एक्सेप्ट करो। और एक्चुअली जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि अगर इंडिया में जो सबसे इजी टेस्ट है वो है SSB। गाइज आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार सबसे इजी टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइज आपको पता है कि एग्जैक्टली कौन सी फ़ोटोज़ आपके पास आने वाली हैं, आपको ये पता है कौन से वर्ड्स आने वाले हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के सारे क्वेश्चंस आपके पास है, SD के 5 क्वेश्चंस आपके पास है, फिर भी हम कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? हम खुद ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये बहुत अच्छी कॉम्प्लिकेट एग्जैक्टली इसलिए करते हैं कि क्योंकि हम दूसरों से पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हाँ राइट, आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, आप अपनी स्टोरीज लिखो, अपनी लाइफ की स्टोरीज बिल्डअप करो, राइट, तो ये आपके बहुत फेवर में जाएगा। डेफिनेटली। और इसके बाद आई विल कम टू द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सो उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि आप जितना ज़्यादा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पहले से करके जाएंगे, सो वहाँ पर यू विल नॉट बी कमिंग अप इन फ्रंट ऑफ समथिंग जो आपने पहले कभी देखा नहीं था। सो उसमें जो क्वेश्चनर है, जो सिचुएशन आपको दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू विल रीड इट, then you figure it out what is being said, what is being said in this, and then you will think of the answer. But आपने पहले से वो SRT किया हुआ है तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सपोज़ आप बिल्कुल बिना किसी प्रिपरेशन के जाते हैं तो आप 25 या 30 SRT कर पाते हैं फुल स्पीड के साथ। बट अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे देन यू विल बी एबल टू मेक मोर देन 40 आई गेस, बिकॉज दिस टाइम आई वाज एबल टू डू 42 एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर, you have to maintain the honesty in your answer, practicality, you have to write pragmatic answers. Yeah. So that is very important, and that will definitely go in your favor, and it will fall in line with the answers you have given in TAT, Okay. The answers you have given in VAT. ओके, हरी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एग्जांपल्स बताइए कि उनके रिस्पॉन्सेज कैसे होने चाहिए, बिकॉज 60 रिस्पॉन्स तो कोई भी लिख सकता है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस रिस्पॉन्स के अंदर होना क्या चाहिए। आप एक एग्जांपल से बताइए। जैसे एक सिचुएशन मैं रखता हूँ एंड व्हाट वुड बी माय रिस्पॉन्स टू दैट। सपोज you are going to the exam, Okay. and you are surrounded by 2 policemen. So your response would be first of all you'll put yourself in that situation. आप करोगे क्या? Now कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स इस सिचुएशन में थोड़ा सा नेगेटिव लाइट में चले जाते हैं। Okay. कि वो जैसे पुलिसमैन सुनते हैं तो पुलिस की आपकी क्या इमेज है आपके दिमाग में, सो ज़रूर कुछ यू आर इंडल्ज इन सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ऐसे क्रूशियल टाइम पे व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम हॉल एंड यू आर सराउंडेड बाय द पुलिसमैन। ओके। एंड उसमें SRT में आपको इतना फ्रीडम होता है कि आप कुछ भी उसमें सोच सकते हो, इमेजिनेशन का टेस्ट है। सो आपने यही क्यों सोचा कि आपको पुलिस मैन ने इसलिए सराउंड किया बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग? नो, सिंपली दे हैव सराउंडेड बिकॉज दे वर पासिंग एट द सेम थ्रू द सेम वे। ओके, ये भी तो हो सकता है। सो आई विल सिंपली पुट के I will ask the policeman to give me the way, Okay. and I'll show them the exam hall ticket that Okay. Sir, I have the exam, and I'll proceed to the exam and appear in it. So Okay. this is a very basic one. Don't complicate the situation. Okay. अगर आपको उसमें प्रॉब्लम दे भी रखी है, then by using your imagination, Okay. you can make it simpler one. व्यूअर्स, हरी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप ये सोचिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं और पुलिस वाले ने आपको रोका, सेम सिचुएशन, आप क्या करेंगे? गाइज आप ये सोचिए कि उन्होंने सिर्फ जनरल चेकिंग के लिए आपको रोका हुआ है, और बहुत बार ऐसा होता भी है। आप क्या करेंगे? आप अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं, आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, आप RC दिखा सकते हो, और आप अपने जो भी काम के लिए जा रहे हो। गाइज मैं यहीं पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे अपनी डिटेल अगर मेंशन कर सकते हो कि एंड देन यू वेंट फॉर गिविंग योर एग्ज़ाम, या आप अपने ऑफिस जा रहे थे, अगर आप ये ऑफिस ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ऑफिस, एग्ज़ाम, फिर जो भी स्पेसिफिक चीज़, तो गाइज ये दर्शाता है कि आप एक अपने आप को एग्जैक्टली सिचुएशन में पुट कर रहे हो। बिल्कुल, एंड दिस इज हाउ यू मोल्ड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इन योर फेवर एंड गिव वेरी फेवरेबल, वेरी गुड आंसर्स, वेरी क्रिस्प, एंड या यू कैन यूज पंक्चुएशंस, comma to write the course of actions that will make your answer very brief and to the point, and आप उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचा पाओगे। Like I took that person up, put into the vehicle, or escorted him to the hospital and admit him into the hospital. Rather than that, you can simply write
picked him up and hospitalized. So this is a very brief answer. You can shorten your answer that way. हरी हम चलते हैं अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन के ऊपर. Okay. आपकी क्या स्ट्रेटजी है सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए? Self description, I prepared it beforehand. Okay. As the very first day we talked, and the very first thing you asked from me was, of course, the PIQ and self description test. So both the formats are available on the SSB Psych website. From there you can fill it up and download the PDF. Yeah. So that was very helpful, and that was not enough. उसको भी मैंने बहुत बार करेक्ट किया टू मेक इट फॉल इनटू द टाइमिंग्स, बिकॉज आपको 15 मिनट में वहाँ पे करेक्ट करना है, उसको लिखना है. So at home I decided to wrap it up within 14 minutes. Okay. Because self description test से पहले आप 3 टेस्ट दे चुके हो ऑलरेडी. So हो सकता है आपकी जो राइटिंग कैपेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा अंतर आए. Okay. So for that you need to be prepared. Okay. तो आप एक मिनट का आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चलेंगे. Okay. So that was my strategy, and there are basically 5 questions which is only about you. Yeah. And in self description you are being asked about your parents' opinion about you, your teachers or your employers' opinion about you if you are working. Employers, and your friends' opinion about you, and your own opinion about you, and then at the last what kind of person you want to be 5 years from now or in future. So whatever you are writing, others' opinion about you, you have to give an example. Okay. You have to back that with an example, and this was the strategy we discussed very first when we talked. And Vipul said that if you are writing that your parents think you are obedient, you are a tolerant kid, then you have to back it up with like you used to listen to your parents very silently, keenly, and follow up their footsteps, whatever advice they have given you. Okay. And this is not just enough. Even you have to give an example, like your parents asked you to prepare for civil services exam, and you took up an exam as well. You started preparing alongside the course you have been pursuing. So that is one of the things which benefited and stand out your SD from other candidates. Exactly. Yeah. हरी आपने एकदम सही कहा. व्यूवर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हो, अगर आप सिर्फ उसके अंदर सिर्फ क्वालिटीज़ लिखोगे, जैसे कि मैक्सिमम लोग यही लिखते हैं कि माई पेरेंट्स थिंक दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल, ओबीडियंट, केयरिंग चाइल्ड, राइट? एंड द थिंग इज़, बात ये है कि कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा, राइट? आपको इंसिडेंट बताने होंगे, आपको एग्जांपल्स देने होंगे, और एग्जांपल्स भी आपके वेग नहीं हो सकते, राइट? मैक्सिमम लोग, अब मैंने ये देखा है कि लोग बोलते हैं कि माई पेरेंट्स कंसिडर मी एज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बिकॉज आई डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, like making a payment for the TV, making or doing recharge or doing something. Guys, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप पेटीएम से जो हम पेमेंट करके या कोई भी हमारा यूपीआई पेमेंट करते हैं, गाइज इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं दिखती है. ये आपका 30 सेकंड का काम है, बट हमें लगता है कि हमने कितना बड़ा काम कर लिया. अगर यहीं पे अगर हम आपको कहते हैं कि आप जाइए बाहर जाके बिजली का बिल पे करके आइए, तब हम समझ सकते हैं कि येस यू आर रिस्पॉन्सिबल. एंड इवन दिस एग्जाम्पल दैट विपुल हैज़ गिवन कि आप यूपीआई से पेमेंट वगैरह कर रहे हैं. So if this is cannot be taken as one of the examples of being responsible. लेकिन इसको आप मोल्ड कर सकते हो कि you are working as a helping hand to your parents and explain them the use of internet. You are telling them, explaining them how to use this particular application, because the older generation of ours, elder generation is not that much tech savvy as we are. So this is one of the kinds of help we can cater to them. व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास एक अच्छा मौका होता है कि आप कोई भी क्वालिटीज़ आप मेंशन कर रहे हो तो उसके साथ आप एक अच्छा इंसिडेंट अटैच करो, राइट? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को कैसे पता चलेगा कि आप एक ब्रेव पर्सन हो, राइट? अगर आप बताओगे कि आपने वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग की हुई है, आपने बंजी जंपिंग की हुई है, राइट, या आपने कोई ट्रैकिंग की हुई है, तब हम कह सकते हैं कि यार यस यू आर अ ब्रेव पर्सन. बट अगर मैं एग्जांपल ही नहीं दूंगा तो कोई भी क्यों विश्वास करेगा? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटीज़ एक मेंशन करो, बट एक्टिविटीज़, यानी कि एक्टिविटीज़
एक्टिविटीज़ या आपकी जो इंसिडेंट है वो ज़्यादा मेंशन करो। तो इस तरीके से आपका एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा बनेगा। और अच्छी बात ये रहेगी कि आप सिर्फ अपनी इंसिडेंट मेंशन कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की फिर भी आप मेंशन कर रहे हो तो गाइस ये आपके फेवर में नहीं जाएगा। So next would be the strategy for your teacher's opinion about you, your friend's opinion about you, and your own opinion about you, Okay. and what you want to become Yeah. in next 5 years, and that is short. Like उसमें आपको इस तरीके से example तो देने नहीं होंगे, but you have to give an honest opinion. Yeah. And an honest opinion should not be something exaggerated or something. Yeah. Like I want to be a millionaire or something. Lekin I want to give out society something. I want to set examples that boost up the morale of the countrymen. Yeah. This was my answer. Yeah. So that was how I prepared for it and wrote my answers in self-description. Thanks to the lockdown, I guess, because then only I came in contact with SSB Psych. I talked to you, and you gave me. आपका डर आपको खुद ही पीछे लेके चले जाता है। तो गाइस मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़, बिकॉज हम डायरेक्ट जंप करने की सोचते हैं फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, but nobody is defining that. What is being asked, like then you have to have initiate the discussions very first. Okay. So this was my first strategy. Okay. And we were using Fatta and Balli through the drawings. So we were like exploring our imagination. We were drawing all the obstacles. So how will you use and how many solutions you can make? So we used to draw the drawings. Exactly. We used to draw the sketches and we used to send it by clicking a picture to the Vipul. Vipul gives us feedback and he gives us a very critical one. हम of course ये तो सीख गए कि भाई किस रिसोर्स को कहाँ यूज़ करना है, but at the end of it we were very good drawers. So that was one of the moments when I very first learnt the basic concepts, what should be there in the stories of TAT and the psychometry test. GTO के बारे में हमने इतनी सारी प्रैक्टिस की, हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, हमने ग्रुप डिस्कशंस के पार्टिसिपेट किया, उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे बात की, एंड उसके अलावा हमने इंटरव्यू के लिए वीडियोस रिकॉर्ड की अपनी खुद की, हमने क्वेश्चंस लिए, एंड PPDT सेशंस विच हैपेंड ऑन संडे वाज वेरी हेल्पफुल. एंड डिस्कशंस में आई वाज यूजिंग the contrary opinion than the others. I used to call at the odd hours of the day to Vipul and ask for the conduct and a test for me at my convenience. And SSB Psych provided me tests, the whole complete test, or particular one if you want. TET का सिर्फ टेस्ट देना आपको. Yeah. But मैंने complete टेस्ट ज़्यादा दिए. Lecturate cards we call it, and those are available on SSB Psych website. You can order them and you can directly contact to Vipul. And even I got one package for myself and I prepared with that. You are given exactly in the same format that you will be given at the GTO, in the GTO task at SSB center. कि अगर आपका SSB आ रहा है तो मैं आपको 2 महीने पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. लेकिन वो स्टिग्मा दिमाग में रहता है कि इंग्लिश का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि